Dear students, we are reading a very important short story in your textbook, Snapshots, and the name of the short story is Ranga's Marriage. We have almost finished half of the lesson, half of the story, and today we are going to go ahead with the rest of the story. So before going ahead, let me put once again a brief introduction about the lesson before you so that you are able to understand once again that what we are reading. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, the story Ranga's marriage dates back to the early days of British rule. यानी उन दिनों की बात है, उन दिनों की कहानी है when there was British rule in India. That is before 1947. When the life in the villages was very slow and child marriages were very common. Life बहुत slow थी, poverty बहुत ज़्यादा थी, and it was a custom in the villages to marry off their children at a very young age. So child marriage जो थी, it was very common. This story very interestingly shows the manipulations done by the narrator to bring a change in idealistic view of Ranga about marriage and gets him married to an 11-year-old girl, Ratna. इस story में आपने अभी तक पढ़ा कि there has been a change in the thoughts of Ranga. Ranga जो है, he is the son of the accountant of the village, and he's a very lucky person that he got a chance to go outside his village to Bangalore to get more education, to get higher education. And when he returns back to his village, there is a lot of change in his thoughts, in his feelings, in his response to certain things. तो उसमें बहुत ज़्यादा changes आ गई है. उन changes में सबसे अहम है कि his views about marriage. पहले उसके marriage के बारे में उसके ख्यालात भी वही थे जो गांव के बाकी लोगों के हैं. But once he gets some education from Bangalore, from the city, he gets a new exposure of knowledge, a new exposure of education. अब वो कहता है कि नहीं, तब तक शादी नहीं हो सकती जब तक लड़का और लड़की जब इनमें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो. और दूसरी बात जिस पर वो ज्यादा फोकस करता है कि उस लड़की की तब तक और लड़के की भी तब तक शादी नहीं होनी चाहिए और ना हो सकती है जब तक वो मैच्योर ना हो, जब तक वो बालिग ना हो. तो इसके ख्यालात में थोड़ी सी चेंज आती है और गांव वाले इस चेंज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं. और जो नरेटर है, जो हमें कहानी सुनाता है, वो एक बुजुर्ग है खुद भी. तो कल आपने पढ़ा, यस्टरडे वी रेड, कि उसकी नजर में एक लड़की है और वो लड़की जो है, रामा राव वहां पर एक शख्स है, उसकी वो भतीजी है, उसकी वो नीस है. And the narrator wants to marry off that girl to Ranga. वो उस लड़की की शादी करना चाहता है विद रंगा. लेकिन अमेजिंगली वो जो लड़की है उसकी एज है जस्ट 30, वो सिर्फ 13 साल की है. तो नाउ वी विल सी, जब नरेटर उसके सामने ये ऑफर रखेगा रंगा के सामने, तो रंगा जो है वो चाइल्ड मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है. नाउ वी विल सी वेदर ही विल एक्सेप्ट दिस और नॉट. वो उसको एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं. So today we have to start from page number 20, para number 1, since I was. So the narrator says that since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. अब narrator कहता है, जो हमें कहानी सुनाता है, वो कहता है कि मैं रामा राव के अक्सर उनके घर जाता हूँ और वहां पर वो लड़की मुझसे मिली, वो मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी. उसके दोनों पेरेंट्स मर चुके थे, both of her parents have died, and उसकी जो देखभाल है, तो उसकी जो परवरिश है, that's done by रामा राव, उसको रामा राव ने बड़ा किया. और वो लड़की मेरे साथ बहुत ही फ्रैंक है, she is very good with me, तो मेरे साथ वो अच्छे से पेश आती है.
I completely forgot to mention her name रत्ना. अब राइटर कहता है कि मैं आपको ये बताना भूल गया कि उसका नाम क्या है, तो उस लड़की का नाम है रत्ना. रत्ना उसका नाम है. Well, was Ratna. It was the very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. तो अब इस नरेटर ने कहा रामा राव की वाइफ को कि मैं कुछ बटर मिल्क भेजने वाला हूं और आप एक काम कीजिएगा, इसको लाइएगा. तो रत्ना केम और उसके बाद रत्ना आ गई. It was a Friday. ये फ्राइडे थी. Coincidentally, today is also Friday. So she was wearing a grand sari. उसने एक अच्छी साड़ी पहनी थी. I told her to sit in my room. मैंने उससे कहा मेरे कमरे में बैठ जाओ. And requested her to sing a song. मैंने उससे कहा कि आप एक गाना गाओ मेरे लिए. You should sing a song for me. I sent for Ranga. मैंने रंगा को बुलावा भेजा. While she was singing the song, Krishna Murti in front of my eyes, Ranga raised the door. और इस लड़की ने, रत्ना ने एक गाना स्टार्ट किया और वो गाना इस तरह था, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज. ये गाने का नाम है. एक किस्म का भजन होगा कुछ या कुछ गाना होगा. तो जब ये पढ़ रही थी ये, तो अचानक रंगा, जिसको बुलावा भेजा गया था, राइटर ने उसको, नरेटर ने उसको बुलावा भेजा और वो भी पहुंच गया. He stopped at the threshold. और वो दरवाजे के सामने ही रुक गया. He did not want the singing to stop, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से ये singing बंद हो. But was curious to see the singer. वो देखना चाहता था कि who is the singer, गाने वाला कौन है, क्योंकि उसको ये आवाज जो रत्ना की है वो बहुत ही अच्छी लगी. Carefully he peeped in. और उसने क्या किया? Carefully peeped in. Peep मतलब वो झांकना. कशर पट ट्राई की वुशन है, तो उसने पीप किया, देखा. The light coming into the room was blocked. और जो कमरे में लाइट आ रही थी वो ब्लॉक हो गई. रत्ना looked up. रत्ना ने सामने की तरफ देखा. And seeing a stranger there abruptly stopped. और उसने इसको देखा कि ये तो stranger है. And she stopped. उसने बंद किया गाना. Suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly, savoring its peel. अब नरेटर कहता है कि सपोज आपने एक अच्छी क्वालिटी का कोई मैंगो खरीदा हो. जब आप कोई मैंगो खरीदते हैं, when we buy some mango of a good quality, what you do, you eat it slowly. आप इसको जल्दी जल्दी नहीं खाते, आप इसको आराम से, आसानी से खाते हैं. Savoring its peel, और उसके पील को भी अच्छे से उठाते हैं. Before biting into the juicy flesh, और उसके बाद आप उसका फ्लैश खाते हैं. उसके बाद आप जो टेस्टी जो अंदर का होता है, तो पहले उसका पील हटाते हैं. तो उसमें बेसब्री नहीं करते, इसमें आप हेस्ट नहीं करते. यू डू नॉट हेस्ट. अब बड़े आराम से जब आप मैंगो खाते हैं. यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट. आप इसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. बिफोर यू टेक अनदर बाइट, जब आप एक और बाइट लेते हैं, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स. और उस हैंड, आपके हाथों से ये फ्रूट स्लिप हो जाता है. एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और जमीन पर पड़ता है. ये आपने देखा होगा जब हम आम खाते हैं. सो वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ईट mangoes because we want to eat mangoes. Mangoes are very delicious, बड़े मजेदार होते हैं. But it is very difficult to eat mangoes because mango tasty तो होता है, लेकिन आपको पता है कि it's very slippery. और जब हम इसका second peel off करते हैं, then we try to eat it. जब हम उसको खाने की कोशिश करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि it slips away from our hands. हमारे हाथों से गिर पड़ता है. एंड देन आप देखते हैं कि उससे हमारे कपड़े भी जो है वो भी खराब हो जाते हैं, हमारे हैंड्स खराब हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर भी कभी कभी आम आ जाता है. तो इसी तरह ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ द मैंगोज. मैंगोज की एग्जांपल देता है. तो ये ग्राउंड पर गिरता है. हाउ डू यू फील? रंगा's face showed the same disappointment when the singing stopped. इसी तरह जब आपके हाथों से आम फिसलता है, जमीन पर गिरता है, you become very disappointed, you become very dejected. आप मायूस हो जाते हैं. इसी तरह रंगा भी जब उस लड़की की आवाज बंद हो गई, वो भी बड़ा मायूस हो गया, क्योंकि वो बड़ा एंजॉय करता था उसकी आवाज को, क्योंकि उसकी आवाज उसको बहुत अच्छी लगी, सिंगिंग उसकी अच्छी लगी. You sent for me, he asked as he came in and sat on a chair. जब वो चेयर पर बैठ गया, उसने मुझसे कहा कि आपने मुझे मेरा बुलावा भेजा, मुझे बुलाया यहाँ पर, मैं इसीलिए आया. रत्ना stood at a distance. रत्ना थोड़ी दूर बैठी.
her head lowered, उसका सर नीचे की तरफ था शर्म से, हया से. Ranga repeatedly glanced at her. रंगा ने उसकी तरफ देखा. Once our eyes met and he looked very embarrassed. और जब इनकी आंखें आपस में मिल गई तो रंगा जो है थोड़ा embarrassed हो गया, थोड़ा परेशान हो गया. No one spoke for a long while. और बहुत टाइम तक किसी ने बात नहीं की. It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. तो रंगा ने कहा कि अगर मेरे आने की वजह से आपकी सिंगिंग डिस्टर्ब हो गई है, let me leave, फिर मैं जाना चाहता हूँ. Words, more words. The fellow said he would leave, but he did not make a move. अभी जाना चाहता था, कहता था कि मैं बाहर जाऊंगा, but he did not move. लेकिन वो मूव नहीं हुआ. How can one expect words to match actions in these days of कलयुगा? तो ये हिंदूज जिस तरह हम कहते हैं कि कशीर पे वनान आखिर जमान, हम कहता है कि हम आखिर जमाने में रह रहे हैं, तो हिंदूज इसको कहते हैं यथ आखिर जमान वनान वनान कलयुग. कलयुग मतलब कि उल्ट वक्त आए. शेखुल आलम अब्दुल्ला वनान सह वांदर राज वनान है. तो कलयुगस मज बड़े अजीब अजीब किस्म के क्राइम्स होते हैं. न शर्म है, न हया है, न मोहब्बत है, न भाईचारा है, न एक दूसरे का रिस्पेक्ट है, जो हम देख रहे हैं. तो दपान तो इसी तरह हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस, यानी कलयुग की एक क्वालिटी ये भी है कि इंसान के वर्ड्स और उसका एक्शन आपस में मैच नहीं होगा. जिस तरह हम आज देखते हैं, हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वी स्पीक वेरी गुड ऑफ थिंग्स, लेकिन व्हेन इट इज द टाइम ऑफ एक्शन, जब हमें उन पर अमल करना होता है तो हम अमल नहीं करते. हम वाज भी बहुत सुनते हैं, नमाजें भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं तो उन पर हम कभी भी एक्शन नहीं करते. तो अकॉर्डिंग टू द नरेटर इट इज द साइन ऑफ कलयुग. पानी पेट वालों से आखिर जमान की निशानी. रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना अंदर चली गई. ओवरकम बाय शाइनेस, क्योंकि पुराने जमाने में देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ शाइनेस, बहुत ज्यादा हया हुआ करती थी, जो आजकल बहुत ही खत्म होने को है. तो पुराने जमाने में द गर्ल्स वर वेरी शाई ऑफ देयर एल्डर्स. इवन वुमेन जो है, जो घर की मालिकिन भी होती थी कोई औरत, तो उसमें भी शर्म हया बहुत ज्यादा होती थी, तो वो बेचारी शर्म से अंदर चली गई. आफ्टर वेल रंगा आस्क्ड, और उसके बाद रंगा ने पूछा नरेटर को, हु इज दैट गर्ल स्वामी? स्वामी ये जो ये लड़की है ये कौन है? मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी पड़ा इसके बारे में. हु इज दैट इनसाइड, ये अंदर कौन है? द लाइन वांटेड टू नो, क्योंकि ये जानना चाहता था कि अंदर कौन है. The he goat who had taken shelter in the temple replied. और स्वामी जो है, जो नरेटर है, ये एक ही गोट की तरह है, तो उसने रिप्लाई किया, उसने जवाब दिया, जो कि ज्यादातर टेंपल में रहता है. Doesn't matter who I am. I'm a poor animal who was already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? तो जब कोई लाइन होता है तो वो ये कहता है, जब एक लाइन बहुत सारे, जब एक कोई एनिमल होता है वो लाइन उसको खाता है, तो उसके बाद वो नहीं देखता है कि वो मेल है या फीमेल है. द लाइन फ्लड द प्लेस इन नियर इट सीम्स लाइक द ही गोट आई सेड. तो नरेटर कहता है मेरी ही गोट की तरह का. ही गोट मतलब मेल गोट. आई आस्क्ड व्हाट डज इट मैटर टू either of us who she is. इससे क्या फर्क पड़ता है वो कौन है, आपको इसका क्या करना है और मुझे भी इसका क्या करना है. आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैंने तो शादी कर ली है, मैं शादीशुदा हूं, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. एंड यू आर मैरिंग काइंड, और तुमने मुझसे कहा है कुछ दिन पहले दैट यू आर नॉट गोइंग टू मैरी, कि तुम शादी नहीं करोगे. मुझसे क्या इसमें प्रश्न, से क्या क्यूरियोसिटी? हमें इसमें क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं, आई एम मैरिड, यू आर अनमैरिड. लेकिन 2 दिन पहले ही आपने मुझे बताया कि यू हैव नो प्लान टू मैरी, आपको कोई जो है प्लान नहीं है मैरिज का. वेरी होपफुली आस्क्ड, और उसने उम्मीद से कहा, शी इजंट मैरिड देन, क्या उसकी शादी नहीं हुई है? हिज वॉइस did not betray को धोखा देना, his excitement, but I knew it was there. She was married a year ago, उसकी शादी हो गई 1 साल पहले. His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, I must go, I have work at home. तो नरेटर ने उससे झूठ मूठ में कहा कि इसकी शादी हो चुकी है 1 साल पहले. तो इससे रंगा का जो है वो मूड बहुत ही खराब हो गया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था शी माइट बी अनमैरिड, वो अनमैरिड होगी.
तो उसको पसंद भी आ गई एंड एक्चुअली ही वांटेड टू मैरी हर। लेकिन जब उसको ये पता चला कि दैट शी इज ऑलरेडी मैरिड तो बड़ा मायूस हो गया। तो उसका चेहरा हो गया जस्ट लाइक रोस्टेड ब्रिंजल। जब एक बैंगन रोस्ट किया जाता है, I went over Shastri the next morning and told him, मैं दूसरे दिन अपने शास्त्री के पास गया, मैंने उससे पूछा keep everything ready to read the stars and stars। शास्त्री जो होता है ये पंडित एक होता है जो कि स्टार्स को कहता है कि मैं स्टार्स पढ़ूंगा, इल्म नजूम के बुनियाद पर बताता है कि किसकी शादी किसके साथ होगी, ठीक रहेगी, कुंडली वगैरह जो आपको पता है। I will come later. I tutored him the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I will come later. I tutored him in all that I wanted to say. मैंने उससे कहा कि मैंने उसको समझाया कि मैं क्या कहना चाहता था। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. जब ये afternoon हो गई तो मैं रंगा से मिला, उसमें कोई change नहीं थी। What is the matter? क्या मसला है? You seem to be lost in thought, I said. मैंने उससे पूछा तुम थोड़े मायूस लग रहे हो, क्या बात है? Nothing is wrong, believe me. कोई मसला नहीं है। Headache, सर में दर्द है? Come, let's go and see a doctor. अगर आपके सर में दर्द है कोई बात नहीं है, I will take you to a doctor. लेकिन रंगा ने कहा I have no headache, मुझे headache नहीं है, I am my usual self, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा मैं था। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. अब राइटर खुद कहता है जब मुझे चूज करनी थी लड़की शादी के लिए, मेरी भी हालत बिल्कुल वही थी जो उस वक्त रंगा की है। But I don't think that could be a reason for your present condition. मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी हालत वही होगी जो मेरी हालत उस वक्त थी। तो रंगा stared at me, रंगा मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगा। Come, let's go and see शास्त्री, I suggested. मैंने उससे कहा चलो हम शास्त्री के पास जाते हैं। We'll find out whether Guru and शनि are favorable for you or not. मैं देखता हूँ क्या तुम्हारे पास तुम्हारे लिए गुरु और शनि ये दो स्टार्स हैं, ये तुम्हारे लिए फेवरेबल शुभ है या नहीं। यानी मैं मुहूर्त देखना चाहता हूँ कि मैं कुंडली मिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी अगर होगी कब होगी, कैसे ठीक रहेगी। रंगा accompanied me, रंगा मेरे साथ आया विदाउट एनी प्रोटेस्ट। उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया, कोई कंप्लेंट नहीं की। As soon as शास्त्री saw me, जब शास्त्री ने मुझे देखा, he exclaimed, उसने हैरत का इजहार किया, what a surprise श्यामा, बड़ी सरप्राइज, बहुत ही सरप्राइज है मेरे लिए श्यामा। Haven't seen you for a long time, मैंने बहुत वक्त से आपको नहीं देखा। श्यामा is none other than your servant, the narrator of this tale। अब राइटर बताता है वह मेरा नाम है श्यामा, तो जो हमें कहानी सुनाता है उसका नाम है श्यामा, ठीक है। तो अब ये श्यामा जो है ये शादी की बात करने के लिए, शादी को देखने के लिए अच्छी रहेगी भी या नहीं, ये अब रंगा को उसकी मुलाकात करवाता है शास्त्री के साथ। तो आपने देखा कि कल जो हमने पढ़ा था कि रंगा जो है ही डिडंट वांट टू मैरी यंग गर्ल, एक छोटी लड़की के साथ, वो नाबालिग लड़की के साथ वो शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब व्हेन ही सा रत्ना, जब उसने रत्ना को देखा, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड, वो बहुत ही इम्प्रेस हो गया एंड ही डिसाइडेड टू मैरी हर। और उसके दिल में जो है वो एक ख्वाहिश पैदा हो गई दैट ही वुड मैरी हर आफ्टर ऑल, वो उसके साथ शादी करेगा। तो विद दिस आई थिंक हमारी क्लास का टाइम भी हो गया है, सो आई एम कंक्लूडिंग हियर एंड इंशाल्लाह द रेस्ट ऑफ द स्टोरी विल बी रेड